Almost a 90-minute speech, in fact more, by the Prime Minister responding to the thank you motion to the President's speech. But very important, among the many other things that the Prime Minister said, he struck at the very heart of the identity of Bharat as a country. Picking up, Madhav, from what Rahul Gandhi had earlier said in Parliament, stating the position of how India is a union of states, the Prime Minister today, in fact, took that to say that you are against, by questioning the identity of Bharat as a nation, you are striking at the very heart of our existence, and then went on to even allege that this is why Congress is now the leader of the Tukde Tukde gang. What are the kind of reactions you picked up from the gallery when this very, very serious charge was made? Well, absolutely. We had seen even, several in the opposition benches who were smiling at some of the remarks the Prime Minister made, jibes that he took at opposition, of course. But at our 40 minutes, one of the longest speeches that the Prime Minister has given inside the House. But he has replied to each and every point that was made by Rahul Gandhi. The most important point first, as you rightly said, hitting out at Rahul Gandhi's comments where he referred to certain states, referring particularly to Tamil Nadu, and also in the same light saying that it was written in the Vishnu Upanishad that the land, south of the Himalayas and north of the sea is called Bharat and is one country. Also at the same time, since Rahul Gandhi had given the example of Tamil Nadu, the Prime Minister very strategically choosing choosing a verse rather of Tamil poet, revolutionary poet Subramanya Bharati, and even in his poetry it is referred to as one nation and one country. And that really was a reply that he gave to Rahul Gandhi on that very important point of India, being a union of states and not a nation. At the same time, saying it is factually incorrect to say that nowhere in the Constitution is a nation mentioned. So those very important retorts coming in. But I think the point that has become very controversial is the way he has hit out at the Congress party for provoking migrant labor. And there are already some reactions coming in from various political leaders, Absolutely. the Congress, the TMC, the spokesperson. And COVID, and how there was COVID mismanagement and whether there was migrant labor who was provoked into migrating towards Uttar Pradesh, towards Uttarakhand, towards Bihar. We're going to, in fact, play out some of those bits, but very, very interesting. Also interesting, and I want to again go to the point where the Prime Minister said that do not question our identity as a country. Do you think, as a political watcher, Madhav, that it was deliberate that he specifically quoted Subramanya Bharati, considering that Rahul Gandhi also, when he said that you will never rule over the people of Tamil Nadu, the Prime Minister today made it a point to refer to how CDS Bipin Rawat was greeted with cries of, his mortal remains were greeted with cries of Veer Vanakkam by the people of that same state, and how Subramanya Bharati was quoted today. Madhav. Well, absolutely. And, Prime Minister referring to Congress leaders and saying that they are part of the Tukde Tukde gang is a very clear reflection of that. Causing divides, causing fissures in society is something that he referred to. He is also, in fact, quoted extensively from the first Prime Minister of India, Pandit Nehru, on issues such as inflation, so on and so forth. Also quoting from the Discovery of India, where he talks about, India and India's identity. So there are so many aspects of what the Prime Minister has spoken about. Very difficult to encapsulate them, actually, in a short period of time, but a very, very hard-hitting reply to several of those questions that have come in from Congress Member of Parliament Rahul Gandhi. And what is very significant is the Prime Minister has, through these an hour 40 minutes, used wit, used sarcasm, quoted from various texts, various bodies, used different quotations, and has hit back at the Congress party. Very often, we had seen how Congress leaders such as Adhir Ranjan Chaudhary tried to interrupt what the Prime Minister was saying, but the Prime Minister very calmly, he was unruffled, but he said that this is something that is of your interest, and literally saved the best for last, where he quoted out of text. We've heard this repeated on multiple platforms, but I can't remember the last time or the first time that a political party or the opposition was referred to as the Tukde Tukde gang inside
the parliament. Let's take this across. Madhav, stay with me. Let's take this across also to our panel. Joining us now, Tuhin Sinha of the BJP. We have Roshni Kushal Jaiswal, spokesperson of the Congress in Uttar Pradesh. Vivek Saila, spokesperson of समाजवादी पार्टी. रोशनी, सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगी, आज साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर बोला कि आपको जो राष्ट्र का, जो हमारे राष्ट्र का पूरा एक आइडिया है, जो समझ है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बोला. आपका पहली प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री का बयान बहुत ही ज्यादा निंदनीय है. 70 साल से इस पार्टी ने इस देश को सुई से लेकर हवाई जहाज तक किया, उस पार्टी को गैंग बोलना बहुत ही निंदनीय बात है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दी है. उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने माँ बाप के ऊपर उंगली उठा दी है, और अगर बात करें देश के श्रमिकों की, उनपे भी उंगली उठाई है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने. जब देश हमारा कोरोना काल से जूझ रहा था, महामारी थी हमारे देश में, तो जो श्रमिकों को उनकी मदद करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, उनकी मदद तो उन्होंने नहीं की, लेकिन आज उन्हीं को जिम्मेदार बता दिया कोरोना फैलाने का. उन्हें बसेस की सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई, उन्हें ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई, उन्हें रास्ते पे मरने के लिए छोड़ दिया. जी, और श्रमिकों के बारे में एक सेकंड में बात करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा आज अटैक आपके ऊपर किया गया है कि बीमारी फैला रहे हैं. भारत क्या है? क्या वो यूनियन ऑफ नेशंस है या वो एक नेशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, तुहिन सिन्हा, दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड दैट इज व्हाट राहुल गांधी सेड. Is it fair to call him then a leader of a tukde gang for stating what is there in our constitution? You know, there are several ways in which Rahul Gandhi has been very carefully stoking a divisive agenda, as was very rightly pointed out by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And I think this is what makes the speech historic. I think if you go beyond what Rahul Gandhi said after quoting from the Constitution, he says Tamil Nadu को ये चाहिए तो आप उसको वो देंगे. तो देखिए, आज प्रधानमंत्री ने भारतीयर का मनोन इनाया मलाई कोट करते हुए क्या कहा है कि राष्ट्र ही हमारी आत्मा है. ये वो राहुल गांधी है जो ग्लोबल टाइम्स से में अगर चाइना में कोई खबर छपती है कि उन्होंने इंकर्शन किया है, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर से पता करना उचित नहीं समझते हैं, वो ग्लोबल टाइम्स की खबर पे जाते हैं. अगर न्यूयॉर्क टाइम्स कहती है कि इतने लोग मारे गए हैं भारत में कोविड के दौरान, तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स पे जाते हैं. तो ये कहीं ना कहीं उनकी निराशावादी मानसिकता को झलकाती है, और प्रधानमंत्री ने यही बात कही है कि कांग्रेस की जो विभाजनकारी मानसिकता है, जो निराशावादी मानसिकता है, उससे वो इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण लम्हे गंवा रहे हैं. और उन्होंने बल्कि कांग्रेस शुड टेक दिस पॉजिटिवली. तो प्राइम मिनिस्टर सेड, डोंट वेस्ट वेरी प्रीशियस मोमेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन दिस नेगेटिविटी. रोशनी जी, हमारे देश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई, हॉस्पिटल में बेड की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई. हमारे देश के प्रधानमंत्री बात बात पे झूठ बोल देते हैं. 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने. 15 लाख रुपए अकाउंट में आने का वादा किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने. कुछ नहीं, कभी ये वादा नहीं किया था. आप लोगों को आपके समझ की प्रॉब्लम है. रोशनी जी, अभी बात ये हो रही है कि सीधा इल्जाम लगाया गया है विभाजनकारी मानसिकता का, डिविजिव माइंडसेट. विवेक सैलास, एक जो पूरा मुद्दा आज सबसे बड़ा निकल करके आया, कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए. श्रमिकों का, श्रमिक जो रास्ते पे भूखे प्यासे मर रहे थे, उनके लिए बसों की सुविधा तो उपलब्ध नहीं करवाई, और आज उन्हीं श्रमिकों को जिम्मेदार ठहरा दिया कि उन्होंने ही कोरोना महामारी फैलाई. बिल्कुल नहीं ठहराया, बिल्कुल नहीं ठहराया. श्रमिकों की जो आप बात कर रही हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला का पहला रिएक्शन आया है, कह रहे हैं लॉकडाउन लगा, मजदूरों पर उनके परिवारों को बेहाली के भंवर में फेंकने के लिए माफी मांगने की बजाय मदद के लिए जुटे हाथ पर सवाल खड़ा किया जा रहा है सरकार के निकम्मेपन के कारण. बिकॉज ऑफ द इनएप्टीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, lakhs of peoples lost their loved ones, and today बेशर्मी से संसद में उनकी पीड़ा पर हंसी ठिठोली की गई. याद रखा जाएगा. तुहिन सिन्हा, योर फर्स्ट रिएक्शन, द पीपल हु सफर्ड, यू लाफ्ड एट दैट. देखिए, ये भारत पूरे विश्व में शायद एकमात्र देश है जो कोविड के पीक के बीचों बीच हमने रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू की थी ताकि इन मजदूरों को लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल सके.
जो तमाम PLI स्कीम्स हुए थे, हम रुके नहीं थे इस कोविड की वजह से। हमने लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, जिससे कि लाखों श्रमिक जो गए थे शहरों को छोड़कर, उनको वापस आने की जरूरत नहीं पड़े। कांग्रेस निराशावादी है क्योंकि ये श्रमिकों को, मजदूरों को भड़का नहीं पाई हमारे खिलाफ। उन लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट दिलाया हमने बहुत ही शीघ्र समय में, और ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो पाती है। विवेक सालास, द चार्जेस, भड़काने की कोशिश, टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कहा तो लार्जली कांग्रेस के लिए था, पर आप भी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बहुत बहुत प्रणाम और सबको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए प्रधानमंत्री जी ने आज कहा राष्ट्र हमारी आत्मा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक चीज भूल गए कि राष्ट्र की आत्मा पे वो लगातार आघात करते हैं। यहाँ के मजदूरों पे, यहाँ के लोगों पे, यहाँ के बेरोजगारों पे, यहाँ के किसानों पे वो लगातार आघात करते गए, कुशाराघात करते रहे, और एक तरह से उन्होंने इन सब की खिल्ली उड़ाई। हम तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कोरोना काल में किस तरह से उत्तर प्रदेश में महामारी व्यापक रूप ले ली थी। यहाँ के मंत्री और सांसद, भारतीय जनता पार्टी के खुद के मंत्री, केंद्र में मंत्री और प्रदेश में मंत्री लगातार भारतीय जनता पार्टी में बोल रहे थे कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। यहाँ के विधायक चिल्लाते रह गए, लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं किया था। लोग यहाँ तक, उसके बाद आप देखिए उसी समय, उसी दौरान किस तरह से यहाँ पर ये जो आपने इल्जाम लगाया उसी का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने बेसिकली स्पेसिफिकली बोला कि हमने बसें चलाई, योगी आदित्यनाथ ने बसें भेजी जो श्रमिकों को वापस लाए दिल्ली से। हाउएवर महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर उनमें पैनिक फैलाया गया, उनको भड़काया गया और उनको बोला गया मैं महाराष्ट्र में प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं उस चीज का। एक मिनट, ट्विन सिन्हा शांत हो जाइए ना, सुनने का ध्यान रखिए ना, थोड़ा सा रुक जाइए। जो सरकार पद्मजा जी ये कह दे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मृत्यु ना हो, जो ये कह दे कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने मजदूरों की मृत्यु हुई पैंडेमिक में आते जाते या किसी भी कारण, जो सरकार ये कह सकती है, वो सरकार किस हद तक झूठ बोल सकती है, इसका अंदाजा क्या आप लगा सकते हैं? आप किस सरकार की बात कर रहे हैं जिसने ऐसा बोला है? जस्ट फॉर क्लैरिटी देखिए विवेक, किस सरकार ने बोला? राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोला, दोनों ने बोला, और डंके की चोट पे बोला। जी, क्यों नहीं बोला? आपको ये भी बता दूं कि झारखंड की सरकार जहां पे JMM कांग्रेस अलायंस में है, और महाराष्ट्र की सरकार जहां पर शिवसेना कांग्रेस और NCP अलायंस में है, उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मौतें नहीं हुई है। सबसे ज्यादा मौतें वैसे महाराष्ट्र में हुई हैं। पर चलिए इस राज्य से आगे बढ़ते हैं। ये बहुत दुखद है पद्मजा जी, जिस तरह से आप बात कर रही हैं बहुत दुखद है। ये सच बात है, ये तो रिकॉर्ड है भाई, बॉम्बे हाई कोर्ट में बोला है, बॉम्बे हाई कोर्ट में बोला है विवेक जी, ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। दुखद ये जो बोल रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला आपको याद नहीं है कि उत्तर प्रदेश भगवान भरोसे, यही बोला था, उसको ही कोट करिए ना सर। आपने जो, आप जिस मुद्दे की बात कर रहे थे, मैंने उस मुद्दे पे आपको याद दिलाया, आपसे पूछा कि किस सरकार ने बोला, मैं आपको याद दिला रही हूँ कि कई सरकारों ने बोला। खैर एनीवे, लेट्स तुहिन सिन्हा रिस्पॉन्ड। आई वांटेड टू बी फैक्चुअली करेक्ट बिकॉज़ मैंने आपसे पूछा किस सरकार ने बोला, आपने कहा केंद्र की सरकार ने बोला। मैं आपको याद दिला रही थी कि और भी सरकार ने। चलिए कोई बात। ठीक है, अभी भी आपके इस डिबेट में जो मैं सुन रहा हूं विपक्ष की दलीलें, उससे यही साबित हो रहा है कि विपक्ष को इस देश के संघीय ढांचा की वर्किंग की समझ नहीं है। देखिए, ये स्टेट का दायित्व होता है कि कितनी मौतें हुई हैं उसका आंकड़ा वो प्रस्तुत करे केंद्र को। ये स्टेट का दायित्व होता है कि कितनी मौतें ऑक्सीजन के द्वारा हो वो प्रस्तुत करे। तो जैसा कि आपने खुद बताया, महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई है, वहां महाराष्ट्र की सरकार ने बताया कि एक भी मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी के द्वारा नहीं हुई है। केरल, जहां केवल 4 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां पर डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा मौतें हुई है, जहां बाय द वे राहुल गांधी वहां के MP है। कभी आपको सुना है वहां उनको आवाज उठाते हुए वहां की स्थिति पर? तो यही तो ये विपक्ष का दोहरापन है। ये सरकार को, केंद्र सरकार को ब्लेम करती है, लेकिन एक संघीय ढांचा की वर्किंग की समझ नहीं है इनको। ओके, विवेक जी से पहले कि जवाब दे, रोशनी जी आप अगर जवाब देना चाहेंगी, और मैं आपको जो फैक्ट्स कोट कर रही थी उसका सिर्फ एक याद दिला देती हूं, क्योंकि ये बात बार बार होती है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मौतें नहीं हुई। आपने भी इस मुद्दे को उठाया। आपको बता देती हूं कि 7 सितंबर 2021 को एक स्पेशल सेशन हुआ था असेंबली का झारखंड में। वहां पर जो मॉनसून सेशन था, माफ कीजिएगा, स्पेशल नहीं, मॉनसून सेशन था, उसमें एक रिटन रिप्लाई था जिसमें यह बोला गया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कि 5132 मौतें हुई हैं झारखंड में, पर ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई। रिटन रिप्लाई है झारखंड सरकार का। रोशनी जी
असेंबली के अंदर। इट्स अ मैटर ऑफ असेंबली रहने रिकॉर्ड। वाली हूँ, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की रहने वाली हूँ, और बनारस की स्थिति मैंने अपनी आंखों से देखी है, यहाँ के घाटों की स्थिति मैंने अपनी आंखों से देखी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह से एकदम झुठला दिया था यहाँ की हकीकत को। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 8 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, 3 मंत्री हैं, 1 मेयर है, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ पे मदद करने पे कोई सामने नहीं आया, सब के सब क्वारंटाइन थे। और उसके बाद जब ये आंकड़े सामने आते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई, जब हर इंसान चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे हॉस्पिटल में बेड की कमी है, तब अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उसकी मैं प्रूफ हूँ। बाकी मैंने किसी और का स्टेटमेंट, झारखंड का स्टेटमेंट और मुंबई का स्टेटमेंट नहीं सुना है, इसलिए आपके चैनल के आपने झारखंड का स्टेटमेंट नहीं देखा, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया कि असेंबली में रिटर्न रिप्लाई था। मैं आपको और भी बता सकती हूँ कि कैसे उसको फिर झारखंड प्रेस क्लब ने कॉन्ट्रडिक्ट किया, ये कह के कि 30 पत्रकारों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी से। पर चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी आर जस्ट हियर टू पुट आउट द फैक्ट्स। आपने सही किया, आपने बनारस की स्थिति के ऊपर अपने फैक्ट्स दिए, मैंने कुछ और फैक्ट्स जो मेरे को मिले वो भी सामने रखे। हाउएवर, इट वाज a statement given by the Prime Minister. We are likely to see much more on this, reactions coming from all political parties. From the time being, thank you very much, both gentlemen and Roshni ji, for having joined me. I'll see you next at 10 p.m. on the News Hour Agenda.